चलिए बैक स्ट्रेट। स्पेक्स रिमूव कर देंगे। आज डीप ग्राउंडिंग करेंगे तो कोशिश करना अगर हो सके तो पैर अपने जमीन पे रखें। ठीक है। Inhale and exhale. Inhale, exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale, exhale. इमेजिन करेंगे कि अपने आसपास की गोल्डन लाइट को आप इनहेल कर रहे हैं और अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज को आप एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेल एंड एक्सहेल। सांसें नाभि तक जानी चाहिए। नाक से सांस लेते हुए और मुंह से छोड़ते हुए। इनहेल एंड एक्सहेल। Inhale and exhale. Inhale and exhale. माइंड एकदम रिलैक्स हो चुका है। फोकस अपना पैरों के पास रखेंगे। इमेजिन कि आपकी गोल्डन रूट्स धीरे धीरे आपके पैरों के नीचे से बाहर निकल रही है। मदर अर्थ के कोर तक जाने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे मदर अर्थ के कोर में आपको एक बड़ा सा एक्वा मरीन क्रिस्टल दिखाई दे रहा है। आपकी रूट्स उसे चारों तरफ से कवर कर रही है। नाउ आई रिक्वेस्ट लेडी गाया, द मदर अर्थ एनर्जी, आई इन्वोक लेडी गाया, प्लीज हील द वीक रूट्स ऑफ एवरीवन। एक मिनट के लिए अपनी रूट्स को ग्राउंड होते हुए
आपकी वीक रूट्स हील हो रही हैं। नेगेटिव डेंस एनर्जीज आपकी रूट से बाहर निकल रही हैं। धीरे धीरे अर्थ एनर्जी में आपकी रूट्स फैल रही हैं, जैसे किसी विशाल पेड़ की फैलती हैं। लेडी गाया आपकी हर वीक रूट को हील करते हुए, एक्सपैंड करते हुए आपकी एनर्जी को ग्राउंड कर रही हैं। आपकी पूरी बॉडी की एक्स्ट्रा अनवांटेड एनर्जीज मदर अर्थ ऑब्जर्व कर रही है और आपकी फिजिकल बॉडी को ग्राउंड कर रही है। Bury all your negative thoughts in the earth energy. इमेजिन करेंगे आपकी बॉडी का पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी या और भी कोई प्रॉब्लम अगर आप अभी फेस कर रहे हैं तो इमेजिन दैट कि आप मदर अर्थ की एनर्जी में उससे बरी कर रहे हैं। मदर अर्थ उसे अपने अंदर ले रही है और आपकी वीक रूट्स को हील कर रही है। Now I invoke fire dragons, please come, clean their aura, release all kind of lower energies and place a protection wall around them. Now I request Archangel Michael, please place a cocoon of blue light, sapphire blue light to each one of you, that your aura is protected, shielded for 24 hours. मदर अर्थ की एनर्जी आपके रूट चक्रा से सैक्रल चक्रा में प्रवेश करते हुए सैक्रल चक्रा से सोलर प्लेक्सिस एंड हार्ट चक्रा में एंकर करते हुए
Now imagine the source sunlight over your crown chakra. सूर्य की लाइट आपके क्राउन चक्रा से कनेक्ट होते हुए आपके क्राउन चक्रा से आपके थर्ड आई थ्रोट से होते हुए हार्ट में एंकर कर रही है. Now imagine masculine energy of sun, feminine energy of mother earth is opening your heart, balancing your masculine and feminine energy. Your heart is opening right now. आपका heart open हो रहा है. Imagine the big white color heart of universe. Your heart energy is now connected with universal heart energy. Universal heart is giving you peace, love, compassion. You can sense the energy that universal heart is transferring all of this into your heart. You can feel the sensation around your heart chakra. Imagine that black fog is coming out from your body. ब्लैक फॉग आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है. आप और यूनिवर्स सभी इस समय एक ही हैं. You can sense the loving energy of universe. Universe is giving you love right now, filling your heart chakra with love.
Your inner child is so happy right now. Now you are embracing this self love. Imagine that your aura is expanding with love, compassion. I request Archangel Michael, please cut all the negative cords which are connected with all of them and not serving them right now. Please cut the weak cords. Healing is completed right now. Please come back. Move your hands and feet. Your roots are still connected with Mother Earth. You are protected for 24 hours. Place your hands in Namaskar Mudra and say thank you to Lady Gaia. Thank you. Thank you, Aquamarine Crystal. Thank you, Fire Dragons. Thank you, Archangel Michael. Thank you, the Universal Heart. Thank you, Universal Energy, all the universal beings. Thank you, my masters, my guardian angels, my dragon guide. Thank you. Thank you, my mentors, my gurus, my teachers. Thank you. Thank you. Thank you, my ancestors. Thank you, my parents. Thank you, all of you. Rub your palm and place it over your face. आई होप आपने सेल्फ लव एंड प्रेज किया होगा आज. आई नो हम लोग सबको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में हम अपने आप को सबसे लास्ट में रखते हैं, है ना. सो अभी आज आपको फील हुआ होगा वो लव फ्रॉम यूनिवर्स. चलिए, थैंक यू सो मच आज के लिए. सो इस मेडिटेशन को आप रिपीट कर सकते हो. ये मैं कुछ 1-2 दिन के लिए छोड़ दूंगी, ठीक है.
तो आप इस मेडिटेशन को, आपका वो वाला अभी वो चल रहा है ना, फॉरगिवनेस वाला, मैंने बोला था ना 1 वीक तक करने के लिए, फॉरगिवनेस था क्या था, वो कर रहे हो आप? अगर वो कंप्लीट हो जाए तो फिर 1 वीक के लिए इसको कंटिन्यू करना, ठीक है। और आज के लिए आपका एक टास्क है सेल्फ लव, आपको इम्ब्रेस करना है। कुछ भी आज कर सकते हो आप अपने लिए, कोई एक ड्रेस आपको परचेज करना है, कुछ भी जो आपको पसंद हो। नेल पेंट लगाना अगर आपको पसंद है, आप नेल पेंट लगा लो, ठीक है। कुछ भी मतलब अपनी बॉडी को, फिजिकल बॉडी को आपने एक, मेरे लिए सेल्फ लव का मतलब देखो ये सब मेरे लिए टॉर्चर है। लोग बोलते हैं कि ठीक है सेल्फ लव, जो आपकी नजरों में सेल्फ लव है, ठीक है, उसको करना। मुझे याद है जब मैं एक दिन बहुत, जब मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी, मेरी फ्रेंड जबरदस्ती मुझे ले गई वहां पर, यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत फेमस है दिल्ली में मार्वलस, वहां ले गई, ठीक है। और ना कह रही कि रीबॉन्डिंग करवा ले, तो मैंने रीबॉन्डिंग तो नहीं करवाई, मैंने कैरेटिन करवाई, कि नहीं सेल्फ लव होता है, सेल्फ लव कर, सेल्फ लव कर, और जबरदस्ती ले गई। और मैं वो मेरी वो कर रहे हैं, कैरेटिन कर रहे हो, मेरे को टॉर्चर, क्योंकि बालों को वो यूं 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 करके खींचते हैं, तो मेरे लिए वो टॉर्चर था, तो मेरे लिए वो सेल्फ लव नहीं था। अगर आपको पसंद है आप कर सकते हो। मेरे लिए सेल्फ लव का मतलब होता है मेडिटेशन, जहाँ पे मैं रिलैक्स होती हूँ। मेरे लिए सेल्फ लव का होता है मिरर एक्सरसाइज, जब मैं परेशान होती हूँ मैं खुद से बातें करती हूँ शीशे में खड़े होकर, ठीक है। सो मेरे लिए सेल्फ लव का मतलब होता है कि मुझे कपड़े बहुत पसंद है तो मैं कपड़े खरीद लेती हूँ, चप्पलें बहुत पसंद है मैं चप्पल खरीद लेती हूँ। मेरे लिए सेल्फ लव का, मेरे को कभी आप नेल पेंट बहुत बाई चांस ही कभी देखोगे लगाते हो, आपको जो पसंद है, मैं, आप ये मत सोचना कि मैम जो कह रही है वो कर ले हम, नहीं, आप हर किसी की नजर में सेल्फ लव अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे मेरे लिए मतलब वो जो फेशियल जो करते हैं तो मेरे को लगता है मेरा दम घुट जाएगा, तो मेरे लिए वो सेल्फ लव नहीं है, कईयों के लिए वो सेल्फ लव है। तो जो आपकी नजर में सेल्फ लव है, ठीक है, वो आपको करना है, और आज एक एक्ट अपने लिए करना है। हाँ जी सुनीता। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, अच्छा मैम, वो जो मेडिटेशन मैं करती हूँ ना, जो आपने दिया है, वो करने से मतलब सर, मतलब बहुत बैक साइड से बहुत दर्द होता है, मतलब जब भी करती हूँ, मतलब करने के बाद में थोड़ी देर बाद आप में ना बैक साइड दर्द। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करो, आपकी ब्लॉकेज है, आपने बहुत लोगों को शायद, आपने आपने कभी बाउंड्री नहीं की होगी सेट अपनी, बहुत लोगों को आपको कुछ बोलना होगा बट आप बोल नहीं पाए। हम्म। अभी ऐसा है कि अब आप जाके पुराने गड्ढे तो खोदोगे नहीं, आपके पास नहीं, अब एक ही ऑप्शन बचता है कि आप फॉरगिवनेस मेडिटेशन करो। मैं कर रही हूँ, तो आप मतलब आप दिए वीडियो। ऑनलाइन ना फॉरगिवनेस की वो आती हैं, अफर्मेशन, उनको लिखना शुरू करो, अच्छा। ठीक है। सो ये आपका जो गले का पेन है ये चला, और तभी जाएगा ये। आप सोचोगे मैं सिर्फ मेडिटेशन करती रह जाऊंगी, सालों साल मेडिटेशन करूंगी हम्म। और मुझे जो है वो नहीं होगा, ठीक है, पेन, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप वो, क्योंकि वो आप बोल नहीं पाए कहीं ना कहीं, वो आपके अंदर हम्म। अभी भी चीजें स्टोर्ड है, उसको आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? फॉरगिवनेस अफर्मेशन ऑनलाइन ढूंढो और लिखना है फॉरगिवनेस अफर्मेशन, ठीक है, और उसको अच्छा। लिखना शुरू करो। अच्छा, किस में? येलो येलो कागज में ना, नहीं, मतलब? कागज में लिख लो, ब्लू पेन कोई भी, मेरे पास तो ये है बुक इस तरीके की, मैं इसमें लिखती अच्छा। हूँ, ठीक है। अच्छा। ओके मैम, थैंक यू। ये जाएगा नहीं, आप कितनी भी मेडिटेशन कर लोगे नहीं जाएगा ये पेन आपको, जब वही, तक। मतलब जब भी करती हूँ तो बैक साइड दर्द होने लग जाता है, मतलब मेरा सर भारी हो जाता है पूरा। बाकी कुछ नहीं, बाकी रिलीफ मिलता है, लेकिन मेरे सर पर मतलब बहुत हैवी होता है, मतलब जब भी करती हूँ मेडिटेशन। कल रात को भी कर लिया, तो अभी भी मतलब सुबह इतना हैवी है मेरा अभी तक, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या करूँ फिर अभी इसको वापस भी करी तो यहाँ पे वही। खास करके पेन होता है, हाँ, यहाँ पे हम्म। हाथ चक्रा हम्म। पे भी पेन होता है, कई बार ऐसा लगता है कोई सुइयां भोंक रहा है। वही मेरा बैक साइड से लेके पूरा ये जगह से पूरा दर्द होने लग जाता है एकदम। हाँ, वो हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा जब भी ब्लॉक हो, फॉरगिवनेस मेडिटेशन। ओके मैम, थैंक यू। राइट हैंड हैवी हो जाता है, ये नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, तो उसके लिए इतना वो नहीं, नेगेटिव एनर्जी ये रिलीज होती है। बाकी फॉरगिवनेस प्रेयर कोई भी कर सकता है, ऐसा तो है नहीं कि जिंदगी में हमने कभी गलतियां नहीं करी होंगी। देखो, एक बहुत अच्छा इंग्लिश में ना वो है कि एवरी सेंट हैज अ पास्ट,
जो एक बहुत ही, जितना ज्यादा आप स्पिरिचुअल एक इंसान देखते हो अपनी लाइफ में, जिसको आप मानते हो कि अरे ये बहुत ही स्पिरिचुअली बहुत अलाइंड है ये पर्सन, जैसे उंगली मार था, ठीक है, तो उसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ गलत भी किया होता है, भले इस लाइफ टाइम में नहीं किया, हो सकता है पास्ट लाइफ टाइम में किया होगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जब तक आपको गंदगी की गहराई नहीं पता, आप ऊपर भी नहीं उठ सकते। जो नॉर्मल इंसान है वो हमेशा नॉर्मल रह जाएगा। आप लोग जो भी यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन रेगुलर कर रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी लाइफ में बड़ा कुछ कभी ना कभी हुआ होगा जहां पे आपने बहुत प्रॉब्लम झेली होंगी अपनी लाइफ में। मे बी आपका, जैसे मेरे केस में मैं अपना बताऊं, मैं क्या थी मेरे अंदर, एक ना मेरा वो प्राउड नेचर बहुत था। मैं सामने से, खैर ये मेरे अंदर ये अभी भी है कि मैं सामने से जाके किसी से बात नहीं कर सकती, बट अभी मैं वो ये नहीं बोलूंगी कि घमंड है। ये मेरा नेचर है कि मेरे को अगर कोई सामने मिलता है, कोई नया बंदा मिलेगा, वो हाय हेलो करेगा, मैं बातचीत स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है, अगर उसने हाय हेलो नहीं किया तो फिर मैं भी ठीक है, स्माइल करके साइड से निकल जाऊंगी। ये मेरा नेचर है। लेकिन पहले क्या था, मेरे अंदर घमंड था। हट, उससे क्यों बात करूं मैं, उसको बात करने को खुद आएगा। अब घमंड नहीं है ये, कहीं ना कहीं नेचर में अब घमंड नहीं है, लेकिन मैं स्माइल करके निकल जाऊंगी। ठीक है, पहले तो मैं स्माइल भी नहीं करती थी, ऐसे मुंह टेढ़ा करके निकल जाती थी। तो ऐसा नहीं है ना कि गंदी आदतें मेरे अंदर नहीं थी, मेरे अंदर भी थी। मेरी मम्मी से कभी मेरी लड़ाई हो जाती थी, मतलब लड़ाई क्या, कभी बहस हो गई, कुछ हो गया, मैं 2-2 हफ्ते मम्मी से बात नहीं करती थी, मेरी मम्मी बोलती रह जाती थी, मैं नहीं करती थी। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी की, और मैं बहुत सारी ऐसी गलतियां गिना सकती हूँ अपनी, बहुत सारी। जिद में आके मैं कई बार, मैं इतनी जिद्दी थी, जिसने मुझे जिस काम के लिए रोका है वो तो मेरे को करना ही है। तो हर कोई करता है ना, तो आपकी लाइफ में भी आपने कभी ना कुछ किया होगा, और अगर आप बोल रहे हो मैम हमने कुछ नहीं किया, तो भाई भगवान हो आप लोग के, पैर दिखा दो मुझे, मैं चरण स्पर्श कर लूंगी आपके। तो ऐसा नहीं होता, हर कोई करके बैठा है। और वो जो करता है ना, सच्ची बताऊं, जो ज्यादा गलतियां करता है अपनी लाइफ में, इसीलिए कहते हैं ना गलतियां भी करना बहुत जरूरी है। फिर आपको अच्छा मतलब पता कैसे चलेगा कि सही चीज का मतलब, आज अगर मैं मेडिटेशन कर रही हूँ, आज अगर मैं सबसे ठीक है बात कर लेती हूँ, पहले तो मैं कोई हाय हेलो भी बोलता था, सच्ची बता रही हूँ, मैं वहां पे भी हाय, मेरे को अगर नहीं बात करनी ना उससे, मेरे को नहीं करनी, तो जो मर्जी कर ले। आज की डेट में अगर मेरा कोई दुश्मन भी अगर वो आए मेरे को हाय हेलो करता है, मैं बात करती हूँ। तो ये चेंज कहाँ से आया, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उसके भी कॉन्सिक्वेंसेस देखे हुए हैं, तब मुझे पता है यार ये चीज दोबारा नहीं झेलनी। एक टाइम ऐसा आया मेरी लाइफ में, जो 2014 टू 16 का टाइम था, जब मुझे शायद सबसे ज्यादा अपने परिवार वालों की जरूरत थी, मेरे साथ कोई नहीं था, कोई भी नहीं था, सिर्फ सिवाय मेरी फ्रेंड जो थी, उसने मुझे सपोर्ट किया, अदरवाइज कोई नहीं था मेरे साथ खड़ा हुआ। क्यों? मेरे इसी नेचर की वजह से। और गलती फिर मैं दूसरों में नहीं निकाल सकती ना, कि तुमने मुझे सपोर्ट नहीं किया, तुमने क्यों, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा था ना, मैं भी तो वैसी थी ना, घमंडी। तो जब मुझे जरूरत पड़ी तो किसी ने साथ नहीं दिया। ठीक है, सो इसीलिए हमेशा फॉरगिवनेस प्रेयर, तो 21 डेज तो एटलीस्ट कंटिन्यू करो, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी फॉरगिवनेस प्रेयर, आप टाइप करोगे जो आपके साथ रेजोनेट करती है कि ठीक है मैं ये वाली लिखूंगी, रेजोनेट जो करती है लिखना शुरू करो, 21 डेज तक, 21 टाइम। मैं आपको, अभी मेरे पास है नहीं, मैंने अंदर रखी हुई है अपनी, मैंने किताबें भर रखी है लिख लिख के। अभी भी मैं प्रैक्टिस, अभी मैं लिखती नहीं हूँ, बट यस अभी मैं वैसे प्रैक्टिस करती हूँ। मैं जब चैंटिंग करती हूँ तो मैं अपनी फॉरगिवनेस को रख, मैं जब बुद्धिज्म की अपनी चैंटिंग करती हूँ बैठ के, मैं, मेरा फर्स्ट इंटेंशन यही रहता है कि हमेशा मेरे अंदर वो फॉरगिवनेस वाला जो है ना, मेरी एनर्जी को ग्राउंड रखो और मेरे अंदर फॉरगिवनेस को एम्ब्रेस करो। रोज मेरी एक ही प्रेयर रहती है वहां पे। जितना फॉरगिविंग रहोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। हाँ, ये नहीं करना है कि ठीक है आपके साथ किसी ने, फॉरगिवनेस का मतलब लोग गलत ये निकाल देते हैं कि किसी ने आपके साथ, अब जैसे मेरे केस में
एक दो लोग हैं जिन्होंने बहुत मतलब एक टाइम पे अगर मैं बोलूँ टॉर्चर किया है मेरे को, जहाँ पे मेरी मतलब एक होता है ना, मेरी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तक को छन्नी छन्नी किया हुआ है। ऐसे भी लोग हैं मेरी लाइफ में, मैं उनके लिए भी फॉरगिवनेस करती हूँ, बट एक हेल्दी बाउंड्री भी रखती हूँ। ये नहीं कि मैं फॉरगिवनेस कर रही हूँ तो भाई तुम आ जाओ फिर से आके मेरे को कुचल के चले जाओ, नहीं। उनसे मेरे अभी भी वो नंबर्स मेरी ब्लॉक लिस्ट में ब्लॉक है, मैंने ऑन नहीं किया उनको, मैं ब्लॉक वो ब्लॉक्ड है। क्योंकि वो लोग आपको, क्योंकि देखो उनकी अपनी जर्नी है, मैं ये नहीं कह रही कि वो जानबूझ के करे, उनकी अपनी जर्नी है, ठीक है। लेकिन मैं क्यों बोलूं कि आ बैल मुझे मार। सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी तो कोई चीज है ना। मैं यस, है मेरी है एक दो लोग, मैं उनको फॉरगिवनेस करती हूँ, मेरे घर क्योंकि रिश्तेदार है, घर आते हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करती हूँ, चाय पानी पूछती हूँ। बट मैं, एक होता है ना, ठीक है, हाय हेलो, परिवार कैसा है, सब कैसे हैं, मतलब की बात। ना ज्यादा उनको अपनी फैमिली में इंडल्ज करती हूँ, ना मैं उनकी फैमिली में इंडल्ज होती हूँ। क्योंकि बाउंड्री जब तक आप रखोगे नहीं ना, आप फिर वो पर्सन आपको आके दोबारा दोबारा नोच के चला जाएगा, फिर कितना हील करोगे अपने आप को आप। आपका इनर चाइल्ड तक डैमेज हो जाता है, कितना हील करोगे अपने आप को। जिंदगी भर हील ही करते रह जाओगे। यस करना है, लेकिन सेम चीज के लिए, सेम चीज के लिए हील करते रह जाओगे। तो बाउंड्री भी रखो, फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। अभी कल वो विकास दिव्य कीर्ति का नाम सुना होगा शायद आप सबने, है ना, जो आईएएस आईपीएस के बच्चों को पढ़ा, यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। कल मैं ऐसी रील देख रही थी, मेरे को बहुत पसंद है वो, उनकी कुछ भी रील आती है कुछ भी, मैं जरूर देखती हूँ। तो कल उनकी रील देख रही थी मैं, तो उनका कहना था यस फॉरगिव करो लोगों को, ठीक है। जैसे कीचड़ है, कीचड़ के अंदर जो सुअर है, उसने आपके ऊपर कुछ भी करते करते, हाथ पैर मारते मारते आपके ऊपर कुछ छींटे डाल दिए, ठीक है। अब क्या करोगे, आप उस कीचड़ में गिर के उस सुअर से लड़ने जाओगे? जहां कुछ छींटे पड़े थे अब आप पूरे कीचड़ में लग गए। तो दूरी बना के रखो ऐसे लोगों से, ठीक है। अब फिर वहां लोगों को अगर लगता है कि मैं घमंडी हूं, तो तुमको जो सोचना है सोचो फिर। मैं अपने एनर्जी का प्रोटेक्शन करती हूँ, मेरी अपनी एक जर्नी है। इवन स्पिरिचुअलिटी में तो ये भी कहते हैं कि आप का परिवार भी मतलब छूट जाता है एक टाइम पे, जब आप, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आप अकेले आए हो, आपका परिवार आपके कर्मा का कोई भागीदार नहीं है, ठीक है। सो आपको अपने अकेले जर्नी काटनी है यहाँ पे। और जब मरोगे ना, तो आप अपने किए हुए कर्म यहाँ से लेके जाओगे। भगवान ये नहीं देखेगा आपने दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए कितना किया आपने, अपने खुद के लिए, अपने खुद के कर्मा को क्लीन करने के लिए आपने क्या किया, ठीक है। सो अपने लिए भी चैंटिंग करूं। मैं जब चैंटिंग करती हूँ, शुरुआत में अपने आप से करती हूँ, फॉरगिवनेस से करती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अपने फैमिली के लिए करती हूँ, पहले अपने लिए करती हूँ, फिर फैमिली के लिए करती हूँ, फिर मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए करती हूँ, फिर उसके बाद में, ठीक है, जितने भी यूनिवर्सल बीइंग्स है फिर मैं उनके लिए करती हूँ, पूरी वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए। सो ये होता है मेरा पैटर्न। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मैं खुद को देती हूँ कि मैं खुद के लिए करूंगी पहले। क्योंकि अगर मैं हील हूं, मेरे अंदर प्यार है ना, तो मैं प्यार बांट सकती हूँ। मेरे अंदर ही अगर प्यार नहीं है, मैं खाली हूं, तो मैं क्या बांटूंगी, समझ लो। तो ये इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी यस, आज के लिए आप कुछ भी, जो भी आपको पसंद हो, अगर आपको लगता है आपको कपड़े खरीदना पसंद है, आप कपड़े खरीद लो। आपको जो भी पसंद है, आपको नेल पेंट लगाना पसंद है, आप नेल पेंट लगा लो, ठीक है। आपको मेडिटेशन करना पसंद है, अपने लिए टाइम निकालो, मेडिटेशन करो। आपको चैंटिंग करना पसंद है, अपने लिए टाइम निकालो, चैंटिंग अपने लिए चैंट करो आज। नहीं कुछ, अपने आप से मिरर में खड़े होके बातें करो, जो आपको पसंद है, ठीक है। मेरे केस में मेरे को यस, मेडिटेशन मैं करती हूँ, मैं खो जाती हूँ, मेरे को मेडिटेशन पसंद है, चैंटिंग पसंद है। कपड़े खरीदना, जैसे मैंने बताया, कपड़े सैंडल मुझे पसंद है, वो ये सारे काम मैं करती हूँ।
तो किसी के सेल्फ लव किसी के कहने पे मत जाओ कि क्या क्या है सेल्फ लव। ठीक है, सेल्फ लव आपको पता है आपको अपने आप को कैसे प्यार करना है। हर किसी की नीड अलग होती है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग करना। चलिए, थैंक यू सो मच। और आशा जी, आई थिंक डे 5 की जो थी रिकॉर्डिंग ना, वो वाली अभी भी है ग्रुप में। वो वाली मैंने कहा था कि रेगुलर एटलीस्ट 1 वीक तक आपको कंप्लीट करनी है। मैं बता देती हूँ, एक सेकेंड। डे 5 है आई थिंक, जहां पे हमने ये फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना स्टार्ट किया था ना। डे 1 पे जहाँ आर के वर्च्यू के साथ हमने किया था, जो प्रेयर मैंने बोला था 3 बार रिपीट करनी है, वो वाली प्रेयर आपको 1 वीक तक करनी है, ज्यादा नहीं करना उसको। ठीक है, उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है। 3 बार करना है, तो सॉरी सॉरी 1 वीक। 1 वीक अगर कंप्लीट हो गया फिर छोड़ देना, फिर उसके बाद इसको 1 वीक के लिए कंटिन्यू करना जो आज है। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।